Next, a patient 24 years of age has two decayed teeth, one extracted tooth due to caries and another one extracted for the orthodontic purpose along with the first tooth with temporary restoration. What is the score as per DMFT index 1987? The answer to this question is 4. ठीक है. Basically जब WHO modification होती है DMF index की तो third molars are included. Teeth with temporary restorations are considered as decayed. Teeth with temporary restoration, they are considered as decayed. Initial caries is not regarded as decays. Okay, initial caries को decayed नहीं मानते. Then the tooth with caries below the existing restoration is counted as a decayed tooth. A tooth with temporary restoration is counted as a decayed tooth. See here the rules of DMFT are very important. D is decayed, means untreated caries या फिर temporary restoration को भी हम decayed मानते हैं. Missing due to caries, सिर्फ ड्यू टू केरीज जो मिसिंग हो रहे हैं उन्हीं को हम कंसिडर करते हैं. टीथ जो कि ऑर्थोडोंटिक या ऑर्थोगोनैथिक रीजंस की वजह से निकाले हैं उनको कंसिडर नहीं करेंगे. एफ इज़ फिल्ड रेस्टोरेशन. ठीक है, सिर्फ परमानेंट फिल्ड रेस्टोरेशन को ही एफ मानते हैं. ठीक है, और एक दांत को एक बार काउंट करते हैं, 2 बार काउंट नहीं करते, चाहे उसमें 2 चीज़ें हुई तो उसमें हम एक चीज़ काउंट करेंगे उसकी. नाउ अप्लाइंग द रूल्स, वी हैव नंबर ऑफ डिकेड टूथ इज इक्वल टू 2, मिसिंग टूथ ड्यू टू केरीज इज 1, फिल्ड टूथ इज 1. ओके, नाउ DMFT स्कोर कितना आ गया? 2 + 1 + 1 that is equal to 4. Next, cephalocaudal gradient, head size in the adult to the body size, the ratio is how much? देखो head to body ratio जो होती है that is 0.12. How much? 0.12 is the head to body ratio. Okay, cephalocaudal gradient of growth or squamous growth curve. There is an axis of increased growth extending from head towards the feet. In the fetal life, about the 3rd month of intrauterine development, head occupies the 50% of total body length. Within the head, the cranium is the large part of the relative to the face. जो cranium vault होता है वो large होता है. The trunk and limbs are still rudimentary in these cases. At birth, 39% of the body length is by the head. ठीक है, और जब ग्रोथ होती है तो ये जो है वो 12% तक रिड्यूस हो जाती है. बर्थ पे 39% और बाद में 12% तक रिड्यूस हो जाती है. अब बाकी बॉडी की बात करते हैं. एट ग्रोथ जो होती है वो 1/3 ऑफ द बॉडी लेंथ होते हैं वो हमारे लेग्स होती हैं. एट बर्थ 1/3 ऑफ द बॉडी लेंथ. जब हम बड़े होते हैं, जब हम प्यूबर्टी तक पहुंचते हैं तो 1/2 ऑफ द बॉडी लेंथ जो है वो हमारी लेग्स हो जाती है. देयरफॉर वी कैन से दैट ग्रोथ इन ट्रंक एंड लिम्स is happening faster at a faster rate than head and face. Next, the coffin corner of the mouth is known as what? Coffin corner is another name for alveolo-lingual sulcus. It is another name for alveolo-lingual sulcus. The alveolo-lingual sulcus is the coffin corner and is poorly accessed mucosal surface of the mouth without the use of anterior retraction and digital palpation of the tongue. The region is may be neglected as it is a blind niche. ठीक है. Now, this area should be evaluated thoroughly for the patients with floor of the tongue or lateral tongue lesions. Coffin corner को चेक करने के लिए हम posterior lateral portion of the tongue को देखते हैं, posterior lateral portion of the tongue को. ठीक है, अगर हम टंग को प्रोट्रूड करवाते हैं तो पीछे वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे हमारा ये कॉफिन कॉर्नर प्रेजेंट होता है. ठीक है, इट इज़ a corner like landing on Victorian house stairwell and is poorly accessed mucosal surface while checking. Alright, ये चीज़ जो होती है वो इसकी डेफिनेशन में लिखी हुई है. विदाउट द यूज ऑफ एंटीरियर रिट्रैक्शन एंड डिजिटल पैल्पेशन ऑफ द टंग, दिस रीजन में बी नेग्लेक्टेड. द एरिया शुड बी थॉरली इवैल्यूएटेड इन द पेशेंट्स विद फ्लोर ऑफ द माउथ एंड लेटरल टंग लीजन्स. इफ द कैंसर अबाउट द ramus, the surgeon should not hesitate to perform the periosteal stripping by elevating the periosteum and then visually investigating for macro invasion in this area. ठीक है, कोई भी लीजन अगर इस एरिया में है तो वो उसे हमें चेक करना ही होता है. वो यूजुअली जो है वो बहुत इजीली बाईपास हो जाता है, यूजुअली दिखाई नहीं देती. जीभ को पकड़ के एक साइड को पुल करना है ताकि हमें इस पीछे वाले एरिया में कोई लीजन है वो देख सके. नेक्स्ट, न्यू जीन फॉर ओडोंटोप्लास्टिक डिफरेंशिएशन इज व्हाट? इन 4 ऑप्शन में से MAP1B जीन जो है वो नई जीन है फॉर ओडोंटोप्लास्टिक डिफरेंशिएशन जो हम पढ़ रहे हैं जिनको. मैनी ऑफ द जीन्स आर इम्प्लीकेटेड इन डेंटिनोजेनेसिस. द न्यूअर वंस आर MAP1B जीन. ओके, दैट इज़ फॉर ओडोंटोप्लास्टिक डिफरेंशिएशन. और दूसरी आती है FEX जीन, दैट इज़ FEX PHEX जीन, दैट इज़ फॉर डेंटिन मिनरलाइजेशन. ओके, नेक्स्ट, पिक्नोमेट्री डील्स विद व्हाट? Pycnometry, PYCNOMETRY, it deals with volumetric shrinkage or volumetric polymerization shrinkage and shrinkage in density. Pycnometry, it is a technique that is used to determine the material densities. It is also possible to calculate the volumetric shrinkage in polymerization.
बाय इक्वेटिंग द डेंसिटीज ऑफ द मटेरियल इन द मोनोमेरिक एंड द पॉलीमेरिक स्टेट। ठीक है, मोनोमर स्टेट में और पॉलीमेरिक स्टेट में कितना डेंसिटी का फर्क पड़ा है वो हम प्रिक्नोमेट्री से चेक कर सकते हैं इजीली। In the image shown below, the IOTN aesthetic index score for this image would be what? This image score is given 5. ठीक है, देखो the aesthetic component of the IOTN is in the scale of 10 color photographs. All right, जो ये photographic diagnosis है of the level of dental attractiveness. Grade 1 to 4 जो होता है उसमें कोई भी need for treatment नहीं होता. There is no need for treatment in grade 1 to 4. Grade 4 to 7 में they are borderline, and if the patient is willing, we will go for the treatment. Then grade 8 to 19, ठीक है, 8 to 19 में ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है क्योंकि वहाँ पे फंक्शनल जो पेशेंट को प्रॉब्लम्स है वो आना शुरू हो जाती है। ग्रेड 1 2 3 4 यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, दीज आर एस्थेटिकली एक्सेप्टेबल। ग्रेड 4 to 7, 4 से लेकर 7 तक, यहाँ पे पेशेंट की विलिंग है कि वो ट्रीटमेंट करवाना चाहता नहीं करवाना चाहता, ओके लेकिन अगर 7 से ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती ही होती है। ओके, दिस इज द एस्थेटिक कंपोनेंट ऑफ IOTN। नेक्स्ट, टाइप 1 एरर इज व्हाट? देखो टाइप 1 एरर की डेफिनेशन दी हुई है 4, तो उसमें सही डेफिनेशन चूज करनी है। टाइप 1 एरर इज बीइंग मिसलेड बाय द सैंपल एविडेंस इनटू रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इन फैक्ट इट इज ट्रू। ओके, टाइप 2 एरर क्या होता है? बीइंग मिसलेड बाय द सैंपल एविडेंस, यहाँ दोनों से सैंपल एविडेंस से ही मिसलेड हो रहे हैं, इनटू फॉलिंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस when in fact the null hypothesis is false। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। बेसिकली एक नल हाइपोथेसिस इमेजिन करते हैं। नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि एक पर्सन है H, उसको कोई भी डिजीज़ नहीं है। ठीक है, अब हमने उसका एक टेस्ट किया, कोई डिजीज़ नहीं है इसका एक टेस्ट किया। अब इसके 2 रिजल्ट आ सकते हैं टेस्ट के, या तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा या टेस्ट नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी फॉल्स नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, अब टाइप 1 एरर क्या होता है? टाइप 1 एरर इज रिजेक्टिंग दिस स्टेटमेंट कि पर्सन हेल्दी है व्हेन इट इज़ एक्चुअली ट्रू। मतलब कि कंक्लूड कर देंगे पर्सन को डिजीज़ है। क्यों? क्योंकि टेस्ट किया है हमने, टेस्ट के बेसिस में पर्सन को डिजीज़ निकल के आ रही है, चाहे वो टेस्ट की गलती हो। ठीक है, तो वहाँ पे पर्सन, हेल्दी पर्सन को वी हैव कंक्लूडेड हिम हैविंग अ डिजीज़, दैट इज़ अ फॉल्स पॉजिटिव और टाइप 1 एरर। ठीक है, अब टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 में क्या होता है कि फेलिंग टू रिजेक्ट H0 व्हेन इट इज़ एक्चुअली फॉल्स। मतलब यहाँ पे पर्सन जो है वो हेल्दी नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने पर्सन को हेल्दी कंक्लूड कर दिया। ठीक है, उसकी वो डिजीज़ थी बट स्टिल हमारा टेस्ट जो हमने किया है उसकी वजह से, टेस्ट में कोई गलती हुई है, जो हमने टेस्ट किया उसमें कोई गलती हुई है, उसकी वजह से पर्सन की डिजीज़ डिटेक्ट नहीं हो पाती, उसकी वजह से वी आर कॉलिंग हिम एज हेल्दी। दैट इज़ अ टाइप 2 एरर, दैट इज़ अ फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट। एरर जो है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक रीजन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। टाइप 1 एरर में क्या होता है कि इट कंक्लूड्स दैट अ ड्रग इफेक्टिव, इन रियलिटी इट हैज़ नो इफेक्ट। कोई ड्रग हमारा जो है वो इफेक्टिव कंक्लूड कर दिया जाता है, व्हेन इन रियलिटी इट हैज़ नो इफेक्ट। ऑलराइट, टाइप 2 एरर क्या होगा कि ड्रग इफेक्टिव है लेकिन उसको हम नो इफेक्ट में कंक्लूड कर देंगे ड्यू टू आर गलती या फिर हमारे टेस्ट की गलती। हम ड्रग की गलती निकाल रहे हैं, मतलब उल्टा रीज़न दे रहे हैं। टाइप 1 इज़ फॉल्स पॉजिटिव एंड टाइप 2 इज़ फॉल्स नेगेटिव। Next, the minimum depth of caries to be seen on radiograph is how much? Minimum depth of caries is 500 micrometer, that is to be seen on radiograph। ये डायरेक्ट theoretical question है। 500 micrometer जो हम radiograph पे minimum depth of caries देख सकते हैं। Next, acute kidney injury patient is seen in symptoms with what? Acute renal injury वाले patient जो होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा खतरा होता है हाइपरकैलीमिया का। ठीक है, पोटेशियम लेवल उसमें मेंटेन करना किडनी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर पेशेंट एक बनाना खा लेता है तो उसकी वजह से ही पोटेशियम डिरेंज कर जाएगा, इतना माइन्यूट लेवल हो जाता है पोटेशियम को मैनेज करने के लिए। हाइपरकैलीमिया देयरफॉर विल बी द आंसर एंड इट इज़ कॉमन ड्यू टू द अब्रप्ट रिडक्शन इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एक्यूट किडनी इंजरी और रीनल इंजरी इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंसेस सच एज हाइपरकैलीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपोकैलीमिया एंड हाइपरफॉस्फेटीमिया। क्या क्या चीज़ होती है? एक पोटेशियम मिल गया, दूसरा मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, तीसरा कैल्शियम जो है वो कम हो गया, बॉडी से ज़्यादा बाहर चला जा रहा है, और फॉस्फेट बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। फॉस्फेट विल इंक्रीज इन द बॉडी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पैथोलॉजी दैट इज गिवन इन द इमेज बिलो। इट इज स्मूथ सरफेस कैरीज दैट टू क्लास 2 कैरीज है। ठीक है, क्लास 2 कैरीज लीजन इन प्राइमरी मोलर रीजन, प्राइमरी मोलर के अंदर है। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ पैलेटोप्लास्टिक टेक्निक शोन इन द इमेज इज विच वन? इट इज नोन एज वॉर्डेल्स ऑपरेशन। ठीक है, वॉर्डेल ऑपरेशन होता है जिसको कि वी वाई पुश बैक पैलेटोप्लास्टी भी बोलते हैं।
वॉडल ऑपरेशन। इसमें 2 यूनिपेडिकल फ्लैप जनरेट करते हैं, ठीक है, और ग्लेटर पैटर्न आर्टरी को बचा के ये फ्लैप जो है जनरेट किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों फ्लैप को हम रोटेट कर देते हैं, बीच की तरफ को रोटेट कर दिया दोनों फ्लैप्स को। दिस इज नोन एज वी वाई एडवांसमेंट टेक्निक एंड देयर बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पैलेट, ठीक है। अब ये जो जहाँ से खाली जगह रह गई है, दिस विल हील बाय सेकेंडरी इंटेंशन एंड नेजल मिकोजा इज नॉट क्लोज, improved speech and results are compared with the bipedical techniques. This technique is indicated for incomplete cleft of the palate. Next, which of the following hypoglycemic drugs can predispose the urinary infections? 4 drugs हैं, acarbose, metformin, vidagliptin and dapagliflozin. Okay, now sodium glucose transport inhibitor, that is SGL2 inhibitor, partially all the glucose filtered in the glomerulus is reabsorbed in the proximal convoluted tubules. The major transporter which accomplishes this is SGL2, that is sodium glucose co-transport. ये ग्लूकोज को दोबारा से यूज़ कर लेता है बॉडी के अंदर। अगर इस SGL2 की इनिबिशन हो जाती है, SGLT2, ठीक है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, इसकी अगर इनिबिशन हो जाती है तो ये क्या अपना काम नहीं कर पाएगा। इसका काम क्या है, ग्लूकोज को बॉडी में रीअब्सॉर्ब कराना। तो मतलब ग्लूकोज जो है यूरिन के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब ब्लड ग्लूकोज जो है वो कम हो जाएगा, जो कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में देखा जाता है। अब ग्लूकोज यूज़ नहीं हो पाएगा सेल्स से, तो वहाँ पे वेट लॉस बंदे के अंदर होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रही काम करने के लिए। अब यहाँ पर आता है डैपाग्लिफोजिन, राइट, दिस इज SGL2 इनहिबिटर, SGLT2 इनहिबिटर, ठीक है, एंड हैज बीन रिसेंटली टेस्टेड इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस पेशेंट्स। आफ्टर सिंगल डेली डोज इट कैन प्रोड्यूस राउंड द क्लॉक ग्लूकोसूरिया एंड लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, ठीक है। द कंसर्न्स विच अपीयर इनबिल्ट ड्यू टू इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आर ग्लूकोसूरिया विच कैन प्रीडिस्पोज द यूरिनरी एंड जेनिटल इन्फेक्शन, क्योंकि जहाँ पर ग्लूकोज होगा वहाँ पे बैक्टीरिया के पास खाना मिल रहा होगा, वहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ इंक्रीज कर जाएगी। तो कमेंसल भी बहुत ईजिली इन्फेक्शन कर देते हैं बाय यूज़ ऑफ दिस ड्रग, ठीक है। अब ग्लूकोज बाहर निकाल रहा है, उसके साथ साथ जेनिटल इन्फेक्शन भी हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो रहा है, दिस इज इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। टॉलरेबिलिटी एंड द सेफ्टी ऑफ दिस ड्रग इज येट टू बी एस्टेब्लिश्ड। इट इज़ न्यू ड्रग, दैट इज डैपाग्लिफोजिन। ये SGLT2 पे काम करता है, दैट इज सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट ट्रू पे काम करता है, और इससे जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज है उसको बाहर यूरिन के थ्रू बाहर पुश करता है। Next, according to Ween's classification of the root canals, the type 2 is what? Type 2 Ween's classification. Type 2 Ween classification में 2 orifice होंगे, 2 कैनाल होंगे और 1 फोरामिना होगा, ठीक है। Ween's classification हमारी 4 तरह में डिवाइडेड है, ठीक है। टाइप 1 में सिर्फ एक ही कैनाल होती है ऊपर से नीचे तक। टाइप 2 को हम बोलते हैं 2-1, ओके, ऊपर 2 orifice है, नीचे जुड़ के जाके 1 बन जा रहा है, दिस इज Ween's classification, ऑलराइट। टाइप 3 में 2-2 होता है, ऊपर 2 orifice है, नीचे जो अपाइकल फोरामेन है वो भी 2 है, ठीक है। नाउ टाइप 4 में क्या होता है, 1-2 चलता है, ऊपर एक बड़ा है बिल्कुल टोरोडोंटिज्म की तरह, और नीचे जाके ये 2 में बाइफरकेट कर जा रहा है, ठीक है। हमें क्वेश्चन के पूछा था टाइप 2 में कैसा रहता है, तो 2 orifice रहते हैं, 2 कैनाल रहती हैं, 2 orifice रहेंगे, 2 कैनाल रहेंगी, और एक इनकी ओपनिंग होगी, 1 इज द फोरामिना। How root canal orifice is defined? It is defined as the opening of the canal system at the base of the chamber where the root canal begins. Root canal foramina is where the end of the tooth opens for the pulp to exit its apical or root canal foramen. Orifice और foramina के बीच में डिफरेंस था ये। Orifice जो है वो ओपनिंग होती है इन द कैनाल सिस्टम एट द बेस ऑफ द चैम्बर, जहाँ रूट कैनाल बिगिन करती है, जहाँ बिगिन कर रही है दैट इज द ऑरिफिस जो हम चैम्बर के अंदर ढूंढ रहे हैं। और रूट कैनाल फोरामिना वहाँ होता है जो एपेक्स पे है, फोरामिना इज एट द एपेक्स एंड द ऑरिफिस इट एट द पल्प चैम्बर। इस क्वेश्चन में इमेज दे रखी है और उसमें बोला है आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। 15 की मार्किंग है इसके ऊपर, 15 की मार्किंग है और 5-5 पे ब्लैक है। 15 की मार्किंग है, 5-5 पे ब्लैक है। दिस इज UNC-15, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना 15 प्रोब। ठीक, डिफरेंट टाइप ऑफ पेरिडोंटल प्रोब्स होते हैं हमारे पास। पहला है मार्कीज कलर कोडेड प्रोब, जिसमें 3-3 सेक्शन की 3-3 mm की लंबे सेक्शन में मार्किंग दे रखी होती है। दिस इज मार्कीज कलर कोडेड प्रोब, ऑलराइट, जिसमें 3 mm की कैलिब्रेशंस होती हैं। ठीक है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 12 का बना टोटल ये। बी आता है हमारे पास, उसके बाद UNC-15, इसमें 5-5 mm की मार्किंग दे रखी है, तो पूरी मार्किंग भरी होती है और 5-5 mm पे बड़ा डार्क बैंड होता है। ठीक, तीसरी मार्किंग आती है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ओ प्रोब। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ओ प्रोब जो होता है वो नॉर्मल जो हम प्रोब यूज़ करते हैं उसमें चलता है। 1 2 3 चलता है, 4 मिसिंग होता है, 5 प्रेजेंट होता है,
6 मिसिंग होता है, 7 प्रेजेंट होता है, 8 9 10 प्रेजेंट होता है. दिस इज ओनली टिल 10. ठीक है. उसके बाद आती है हमारे पास मिशिगन ओ प्रोब विद मार्किंग एट 368 मिलीमीटर. मिशिगन ओ प्रोब आता है जिसमें सिर्फ 3, 6 और 8 पे हमारे पास ब्लैक बैंड प्रेजेंट होगा. उसके अलावा कोई भी मार्किंग पे मतलब कोई भी बैंड प्रेजेंट नहीं होता है. दिस इज मिशिगन ओ. और जो ऊपर वाला है दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ओ प्रोब विद विलियम मार्किंग. ठीक है. लास्ट में आता है WHO प्रोब. WHO प्रोब का एक सिंपल सा तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि उसके नीचे जहाँ पे बॉल लगी होती है, ठीक है, दैट इज CPITN प्रोब और WHO प्रोब. ठीक है. WHO प्रोब में बॉल लगी होती है जो कि 0.5 mm की होती है. ठीक है. और इसकी मार्किंग जो होती है वो 3.5, 8.5 और फिर 11.5 तक चलती है. ठीक है. कलर कोडिंग जो होती है दैट इज 3.5 to 5.5. 3.5 से लेकर 5.5 तक पूरा ब्लैक मार्क होगा और फिर आएगा मार्क 8.5, 11.5 पे. WHO प्रोब में 0.5 mm की बॉल, फिर 3.5 पे पहली मार्किंग. ठीक है. 3.5 से 5.5 तक पूरा ब्लैक बैंड. उसके बाद 5.5 के बाद 8.5 पे दूसरी मार्किंग. ठीक है. और 8.5 के बाद 11.5 पे लास्ट मार्किंग. नेक्स्ट एक इम्प्लांट की इमेज दे रखी है एंड पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन वुड बी फॉर्म बिटवीन अ सिरेमिक कोटेड इम्प्लांट एंड द बोन. अगर कोई सिरेमिक कोटेड इम्प्लांट है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इंटीग्रेट करेंगी, कैसी तरह की इंटीग्रेशन होगी बोन के साथ. सो द आंसर इज बायो इंटीग्रेशन विल बी देयर विद द सिरेमिक कोटेड इम्प्लांट. जिरकोनिया सिरेमिक्स और yttrium स्टेबलाइज्ड टेट्रागोनल पॉलीक्रिस्टल्स दे सीम टू बी सुटेबल फॉर डेंटल इम्प्लांट्स बिकॉज ऑफ देयर टूथ लाइक कलर. Okay, and their excellent mechanical properties and their good susceptibility, good biocompatibility, successive bone healing of the dental zirconia under implants under both unloaded and loaded conditions. All right, so यहाँ पे bio integration हो रही है. What's the difference between osseointegration and biointegration? Osseointegration is the occurrence of extremely close proximity between the titanium alloy and the supporting bone with no intervening fibrous tissue or no intervening collagen. ठीक है. ना ही इंटरवीनिंग फाइब्रस टिश्यू होता है, ना ही इंटरवीनिंग कॉलेजन होता है और टाइटेनियम अलॉय और बोन के बीच में एक क्लोज इंटीग्रेशन प्रेजेंट होती है. दूसरी आती है प्रेजेंट हमने हमारी बात जो हमने अभी बात की दैट इज बायो इंटीग्रेशन. ठीक है. बायो इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि इट इज द अकरेंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ सिरेमिक इम्प्लांट इनटू द बोन. सिरेमिक इम्प्लांट जो है वही डायरेक्ट बोन में जो है वो इंटरवीन कर रहा होता है. ठीक है. विदाउट इंटरवीनिंग द स्पेस. सिरेमिक इम्प्लांट डायरेक्टली बोन के अंदर जा रहा है, कोई स्पेस नहीं छोड़ रहा वहाँ पे. सिरेमिक इम्प्लांट्स आर मेड अप ऑफ zirconia मटेरियल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द लीजन फाउंड इन द चिल्ड्रन वेयर फीवर इज अकम्पनीड बाय अल्सरेशंस ऑफ गम, लिप्स एंड टंग्स एंड बकल म्यूकोसाई. अल्सरेशन प्रेजेंट होते हैं जैसे पिन पॉइंटेड अल्सरेशन जैसे. ठीक है. नाउ दिस इज अ केस ऑफ प्राइमरी हर्पेटिक जिंजिवोस्टोमेटाइटिस. जिंजिवोस्टोमेटाइटिस ऑल्सो नोन एज प्राइमरी हर्पेटिक जिंजिवोस्टोमेटाइटिस और ओरोलेबियल हर्पीज. It is a combination of gingivitis and stomatitis or an inflammation of oral mucosa and inflammation of gingiva. Herpetic gingivitis is often seen as an initiation or presentation during the first primary herpes simplex infection. ऐसा इन्फेक्शन जो है वो बच्चे में देखा जाता है along with accompanying fever. ठीक है. और अल्सरेशन हो जाता है लिप्स, गम, टंग, बकल म्यूकोसा हर जगह. नेक्स्ट IV ड्रग अब्यूजर्स कॉमनली आर इन्वॉल्व इन विच वाल्व डिफेक्ट. देखो मिट्रल वाल्व, 4 वाल्व बोले, मिट्रल, पल्मोनरी, ऑट्रिक एंड ट्राइकस्पिड वाल्व. जो IV अब्यूजर्स होते हैं उनमें ट्राइकस्पिड वाल्व के अंदर सबसे पहले दिक्कतें आने शुरू हो जाती हैं. ओके. वाई दिस हैपन्स बिकॉज जो पेशेंट है वो डायरेक्टली जो ड्रग है उसको डायरेक्टली अपने ब्लड में इंजेक्ट कर रहा है, जो वेन्स में इंजेक्ट कर रहा है सीधा. जो सुपरफिशियल वेन्स है उन्हीं के अंदर वो ज़्यादातर इंजेक्ट कर पाते हैं. ठीक है. वीनस ब्लड रीचेज द राइट साइड ऑफ द हार्ट. वीनस ब्लड वीनस रिटर्न से कहाँ जाता है? राइट साइड ऑफ द हार्ट. राइट साइड ऑफ द हार्ट में भी राइट एट्रियम के अंदर वो जाके पहुँच जाता है. अब राइट एट्रियम में जो भी ड्रग है वो सबसे ज़्यादा हाई डोज पे प्रेजेंट है. अभी वो डायरेक्ट लिवर में नहीं गया है, पहले वो लिवर से बाईपास होके नहीं आया ब्लड के अंदर, वो डायरेक्टली ब्लड में गया, डायरेक्टली ब्लड से सिस्टमिक सर्कुलेशन से दिल के पास गया. अब फर्स्ट वाल्व जो ये इनकॉर्पोरेट करेगा दैट इज ट्राइकस्पिड वाल्व. ठीक है. अब इंजेक्टेड मटेरियल में हो सकता है ड्रग की हाई डोज हो. ठीक है. कोई भी ड्रग है जिसकी हाई डोज है, उसके साथ मे बी देयर इज अ बैक्टीरियल कंटामिनेशन, मे बी द सिरिंज वाज यूज्ड अगेन. ठीक है. मे बी देयर वाज पार्टिकुलेट मैटर और मे बी देयर वाज एयर बबल्स और एयर एम्बोलिज्म along with the drug. ठीक है. सो दिस विल डायरेक्टली डैमेज द ट्राइकस्पिड वाल्व एंडोथेलियम. ऑलराइट. और अगर कोई बैक्टीरिया उसके अंदर चला गया है तो बैक्टीरिया ट्राइकस्पिड वाल्व के ऊपर जाके बैठ जाएगा. ठीक है. वहाँ इन्फेक्शन करने के लिए उसको क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा ब्लड चाहिए, ब्लड के साथ थोड़ा सा ग्लूकोज चाहिए. तो बैक्टीरिया यहाँ पे एंडोथेलियम के ऊपर जाके बैठ जाएगा. दिस विल लीड टू बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस. ठीक है. इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इन केसेस में बहुत ईजिली हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ शिगेला इज लेट लैक्टोज फर्मेंटर.
लेट लैक्टोज फर्मेंटर होती है शिगेला सोनी, मतलब ये स्पीशीज़ है, शिगेला की स्पीशीज़ है जो कि लेट लैक्टोज फर्मेंटेशन कराती है, दैट इज शिगेला सोनी, SONNIE। क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन लैक्टोज फर्मेंटेशन। लैक्टोज फर्मेंटर्स में ई कोलाई आता है सबसे पहले, ई कोलाई इज अ लैक्टोज फर्मेंटर, क्लेप्सिला स्पीशीज आर लैक्टोज फर्मेंटर्स। सेकंड आता है लेट लैक्टोज फर्मेंटर्स, लेट लैक्टोज फर्मेंटर्स, इसमें आता है शिगेला सोनाई SONNEI एंड पैराकोलन्स, पैराकोलन्स एंड शिगेला सोनाई आर लेट लैक्टोज फर्मेंटर्स। नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स होते हैं साल्मोनेला एंड बाकी शिगेला की स्पीशीज़, साल्मोनेला और बाकी शिगेला की स्पीशीज़ जैसे कि शिगेला डाइसेंट्री, शिगेला फ्लेक्सनेरी, शिगेला बॉयडी, ये सब जो होते हैं वो नो लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रामस्कुलर साइट्स इज फॉर द अडल्ट, मतलब अडल्ट में अगर इंजेक्शन देना तो कौन सी इंट्रामस्कुलर साइट पे देंगे। देखो सबसे पहले हम एक बटक को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं इस लाइन से लेकर, ठीक है, जो ये ऊपर जहाँ पे एंड करती है, ये बोन जहाँ पे एंड करती है उस लाइन से हम बटक को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। फिर ये जो सुपीरियर लेटरल साइड होती है, सुपीरियर लेटरल साइड, यहाँ पे हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर की साइड से तो हमारे पास नर्व्स वगैरह वेसल्स वगैरह पास कर रही हैं, ठीक है, और ये जो होती है वो सेफेस्ट जोन आ जाती है। दिस आउटर साइड इज द सेफेस्ट जोन, जो हम अभी रेड से दिखा रहे हैं, दिस इज द सेफेस्ट जोन, ठीक है। दिस इज द सुपीरियर लेटरल साइड जहाँ पे हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन विल बी गिवन। मोस्ट सेंसिटिव फ्लोरोसिस इंडेक्स इज विच इंडेक्स अमंग द फॉलोइंग। 4 इंडेक्स दिए हैं, डीन्स इंडेक्स, टूथ फ्लोरोसिस इंडेक्स, नेवी प्लाक फ्लोरोसिस इंडेक्स, चौथा इंडेक्स इज थाइल स्ट्रप एंड फेजर स्कॉप इंडेक्स, थाइल स्ट्रप एंड फेजर FEJERSKOV, थाइल स्ट्रप एंड फेजर स्कॉप इंडेक्स, ठीक है। द थाइल स्ट्रप एंड द फेजर स्कॉप इंडेक्स TF इंडेक्स इज complete and sensitive index because it evaluates the dental fluorosis and all the severity levels correlating with the clinical features with the histological features of the affected enamel. क्लिनिकल और हिस्टोलॉजिकल फीचर्स दोनों को इवैल्यूएट करता है TF इंडेक्स, दैट इज थाइल स्ट्रप और फेजर स्कॉप इंडेक्स। इन देयर क्लासिफिकेशन द स्कोर्स हैव द रेंजिंग फ्रॉम 0 to 9, स्कोर रेंज करता है फ्रॉम 0 to 9, अलाउइंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द माइल्ड टू मोल्ड और मॉडरेट और मोर सीवियर लेवल्स, दैट इज हायर स्कोर्स को ज़्यादा हमारे पास ग्रेटर फ्लोरोसिस का इंडेक्स माना जाता है, मतलब ज़्यादा फ्लोरोसिस का जहाँ पे केस होगा वहाँ पे स्कोर जो है वो हाई मिलेगा। नेक्स्ट, इफ 2 डिफरेंट मोनोमर्स वर मिक्सड, 2 डिफरेंट मोनोमर हमने मिक्स कर दिए, द रिजल्टिंग पॉलीमर विल बी व्हाट। रिजल्ट देखो, 2 मोनोमर मिक्स किए, एक और एक मिक्स होके 2 हो गया, नाउ दैट इज अ पॉलीमर, सो इट इज नोन एज अ को-पॉलीमर, ओके, इट इज नोन एज अ को-पॉलीमर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट इंक्रीज ऑन स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को हथौड़े से मार रहे हो या प्रेशर मार रहे हो उसके ऊपर, ताकि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज कर जाए, ठीक है। वो ज़्यादातर स्ट्रेन हार्डनिंग मेटल्स के लिए हम यूज़ करते हैं। 4 फैक्टर्स दिए हैं, डक्टिलिटी, स्ट्रेंथ, सरफेस हार्डनेस और प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट इंक्रीज करती है विद द स्ट्रेन हार्डनिंग, सरफेस हार्डनेस भी इंक्रीज करती है विद द स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल भी इंक्रीज करती है विद द स्ट्रेन हार्डनिंग। बट द डक्टिलिटी, जितना आप मेटल को बार बार मोल्ड करोगे, बार बार उसे लंबा करोगे, फिर दोबारा छोटा करके, फिर हथौड़े से मार के फिर लंबा करोगे, तो उतनी उसकी डक्टिलिटी जो है वो डिक्रीज करती जाती है। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट यहाँ पे स्ट्रेस टू स्ट्रेन का कर्व होता है, ठीक है, वो इंक्रीज करता जाता है, उसकी वैल्यू इंक्रीज करती जाती है विद इंक्रीजिंग दिस स्ट्रेन हार्डनिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें कि बहुत ज़्यादा क्रूक टीथ दिखाए गए हैं, ठीक है, ओवर बाइट भी हिली हुई है और जो नॉर्मल बाइट है पेशेंट की वो भी नॉर्मल नहीं है, ठीक है, मतलब पेशेंट चबाने लायक बाइट नहीं कर पा रहा है। तो व्हाट इज द IOTN स्कोरिंग फॉर दिस? IOTN स्कोरिंग विल बी 10, ऑलराइट। दिस मीन्स दैट देयर इज अ नीड फॉर ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट हियर, ओके, इन दिस कंडीशन। Next question is, all of the following will be caused by sex chromosome non-disjunction. सेक्स क्रोमोसोम की नॉन डिसजंक्शन की वजह से ये चीज़ें होती हैं, एक्सेप्ट कौन सा, ठीक है। नाउ वी हैव 4 ऑप्शन, सुपर फीमेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल डिसजेनेसिस, फीमेल हर्मैफ्रो सूडो हर्मैफ्रोटिडिज्म एंड गोनाडल डिसजेनेसिस, ठीक है। सुपर फीमेल नॉन डिसजंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम की वजह से होता है, सुपर फीमेल इज XXY। सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल डिसजेनेसिस, इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय नॉन डिसजंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। फीमेल सूडो हर्मैफ्रोटिडिज्म, हर्मैफ्रोडाइट बन जाते हैं इसमें भी हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम की जो डिसजंक्शन है वो नहीं हो पाती। 4th ऑप्शन इज गोनाडल डिसजेनेसिस। देखो, गोनाडल डिसजेनेसिस एक नॉर्मल चीज़ है। गोनाडल डिसजेनेसिस कब अगर करेगा? गोनाडल डिसजेनेसिस अगर करता है जब वाई क्रोमोसोम जो है, मतलब दोनों हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स अलग हो गए, अब वाई क्रोमोसोम के अंदर SRY जीन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से गोनाड्स जो है वो अपनी जो मॉर्फो डिफरेंशिएशन है वो कराते हैं, ठीक है।
तो डिसजेनेसिस में इसके साथ क्या हो जाता है कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें कि गोनाड डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते, मॉर्फो डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अब मॉर्फो डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रही है तो फंक्शनल टेस्टिस या फंक्शनल ओवरीज नहीं बन जाती। इंस्टेड दे रिमेन एज अ नॉन फंक्शनल स्ट्रीक गोनाड्स। They will be looking like a gonad, but they will be non-functional streak gonads mainly composing of fibrous tissue. This result in absent or impaired sex steroid production and infertility in these people. Okay. Now, normal gonadal development depend करती है upon the presence of sex chromosome, particularly the SRY gene on the Y chromosome. अगर ये जीन जो है ढंग से नहीं बन पा रही है, जैसे कि अब नॉर्मल सेक्स क्रोमोसोम आगे टर्नर सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम होता है 45,X, ठीक है, उसमें Y नहीं होता, तो वहाँ पे वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इज एब्सेंट, ठीक है, तो ओवेरियन डिसजेनेसिस हो जाएगी। और 46 क्रोमोसोम है, गोनाडल डिसजेनेसिस अगर हो जाती 46 एक्सेस, तो वहाँ पे अगर कैरियोटाइप के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, अगर एक्स वाई है तो वहाँ पे टेस्टिस नहीं बन पाएंगे, और 45,X है तो वहाँ पे हमारी ओवरीज नहीं बन पाएंगे ढंग से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी। देखो, मैक्सिलरी आर्टरी विल डिवाइड इनटू इंफ्राऑर्बिटल्स, फिनोपैलेटाइन, ग्रेटर पैलेटाइन, ओके, बट सुपरा ऑर्बिटल की ब्रांचेस नहीं देती मैक्सिलरी आर्टरी। सुपरा ऑर्बिटल तो हमारे पास ऑप्थेल्मिक की ब्रांच आ गई ना एक हिसाब से, और सुपरा ऑर्बिटल जो है वो सुपरा ऑर्बिटल फोरामेन और सुपरा ऑर्बिटल नॉच के साथ साथ निकलती है, ओके। नेक्स्ट, अ पेशेंट रिपोर्ट्स टू ओपीडी विद टेंस एंड कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स, रोलिंग ऑफ द हेड, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन द इंट्राऑरल एंड पेरिऑरल मस्कुलेचर, व्हाट इज द डायग्नोस्टिक, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स है, स्पाज्म के अंदर आ रहा है पेशेंट और बार बार अपना नेक जो है वो एकदम रोल करने पे आ जा रहा है, ठीक है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, सो दिस इज अ स्पास्टिक सेरिब्रल पैल्सी। व्हाट इज इट? इट इज अ स्पास्टिक cerebral palsy. Spastic cerebral palsy is the most common type of cerebral palsy, characterized by increased muscle tone, that is spasticity. There is increased stiffness, there is exaggerated reflexes, leading to difficulty in voluntary movements. It usually affects the corticospinal or pyramidal tract of the brain. ठीक है, मतलब पूरी ब्रेन स्टेम में जो पिरामिडल ट्रैक है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है, उसको अफेक्ट करता है, जिससे कि वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी नहीं हो पाती ढंग से। की फीचर्स में क्या होगा? मस्कुलर स्टिफनेस हो जाएगा, हाइपरटोनिया हो जाएगा, एक्सैजरेटेड डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होंगे, सीजर गेट होगा इन द लोअर लिम्ब इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, डिफिकल्टी इन फाइन मोटर टास्क, कोई पेन उठा के लिख नहीं पाएगा, कप नहीं उठा पाएगा, चाय नहीं पी पाएगा। स्पेसिफिक ये जो सेरेब्रल पैल्सी होती है, इट रिजल्ट्स फ्रॉम डैमेज इन द डेवलपिंग ब्रेन, पर्टिकुलरली टू द मोटर कॉर्टेक्स या कॉर्टिकोस्टाइनल पाथवे को कोई भी ट्रॉमा हुआ, इंजरी हुई, प्रीनेटल हुआ, कोई भी चीज़, मतलब किसी भी चीज़ से उसको ट्रॉमा हो रहा है तो उसकी वजह से ये डेवलप करता है, ठीक है, मेनिंजाइटिस हो गई, एंसेफेलाइटिस हो गई, या कोई स्ट्रोक हुआ है न्यूनेटल पीरियड में, ठीक है, प्री मैच्योर बर्थ हो गई तब हो सकता है। दीज आर द थिंग्स। इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे कि टॉर्च इन्फेक्शन होते हैं, उसके अंदर भी ये चीज़ देखी जा सकती है इन द पेशेंट। इसमें गेट पेशेंट का चेंज हो जाता है और जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट होती है, ठीक, सिम्टम ठीक करते हैं खाली हम, ओके। स्ट्रेचेज, रेंज ऑफ मोशन, एक्सरसाइज करवाएंगे, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, गेट ट्रेनिंग, अडैप्टिव स्ट्रेटजीज, मसल रिलैक्सेंट्स विल बी गिवन। मसल रिलैक्सेंट्स में आता है बैक्लोफेन, टिजाडिनिन, मतलब कोई भी मसल रिलैक्सेशन दे दे। बोtulinum टॉक्सिन का भी यूज़ किया जाता है फॉर द मसल रिलैक्सेशन, बट उसका वो एक रिसर्च का टॉपिक आ गया। ऑर्थोपेडिक इंटरवेंशन करी जाती है, टेंडन्स की लूजनिंग, जो टेंडन है उनको थोड़ा सा रिलीज़ किया जाता है। ऑर्थोसिस में ब्रेसिस और स्प्लिंट्स रिलीज़ किए जाते हैं, ठीक है, जॉइंट रिप्लेसमेंट करी जाती है अगर ज़रूरत है तो, ठीक है। नेक्स्ट, द अपर पोल ऑफ द राइट किडनी कॉरस्पॉन्ड्स टू विच लेवल? राइट किडनी का अपर पोल जो है वो कॉरस्पॉन्ड करता है टू लेवल ऑफ रिब नंबर 12, ऑलराइट। दिस इज सिंपल रट्टा मारने वाली चीज़ कि 12 नंबर किडनी के साथ जो राइट किडनी है उसका अपर लोब जो है वो कॉरस्पॉन्ड करेगा। नेक्स्ट, द मैक्सिमम प्रोस्थेटिक इम्प्लांट फेलियर अकर्स ड्यू टू व्हाट? मैक्सिमम प्रोस्थेटिक इम्प्लांट फेलियर अकर्स ड्यू टू स्क्रू लूजनिंग। स्क्रू लूजनिंग की वजह से जो इम्प्लांट के ऊपर हमने क्राउन लगाया होता है उसके और इम्प्लांट के बीच में जो स्ट्रेंथ है, इम्प्लांट खुद नहीं निकल रहा बाहर, लेकिन स्क्रू लूजनिंग की वजह से जो अबटमेंट ऊपर लगाई हुई या जो हमने क्राउन ऊपर लगाया हुआ है, ठीक है, क्राउन अबटमेंट के ऊपर लगती है, वैसे क्राउन जो लगाया और जो इम्प्लांट जो लगाया इनके बीच का जो स्क्रू है वो लूजन हो गया। दैट इज़ द मोस्ट मैक्सिमम केसेस जो प्रोस्थेटिक इम्प्लांट फेलियर के आते हैं वो इसी के होते हैं, ठीक है। ना ही इम्प्लांट मोबिलिटी मैक्सिमम है, ना ही फ्रैक्चर्ड इम्प्लांट मैक्सिमम है, ना ही प्रोस्थेसिस का फ्रैक्चर मैक्सिमम है। जो प्रोस्थेसिस और इम्प्लांट के बीच में स्क्रू है वो लूज कर जाता है, उसकी वजह से इम्प्लांट को फेलियर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पेशेंट हैज़ मिसिंग सेंट्रल इंसाइजर, कैनाइन एंड फर्स्ट प्रीमोलर। सेंट्रल इंसाइजर भी मिसिंग है, कैनाइन भी मिसिंग है, फर्स्ट प्रीमोलर भी मिसिंग है। व्हाट इज द प्रोस्थेसिस दैट शुड बी गिवन? सो फिक्स प्रोस्थेसिस शुड बी गिवन टू द पेशेंट, ओके। फिक्स प्रोस्थेसिस दोगे क्योंकि सेंट्रल इंसाइजर भी आपने रिप्लेस करना है, कैनाइन भी रिप्लेस करना है और फर्स्ट प्रीमोलर भी रिप्लेस करना है। सो एफपीडी बना देंगे इसकी इतनी,
ओके, लेटरल प्रेजेंट है, सेंट्रल की एफपीडी बन जाएगी, कैनाइन की एफपीडी बन जाएगी और फर्स्ट प्रीमोलर की एफपीडी बन जाएगी और ये बाकी पूरे दांतों से सपोर्ट कर दी जाएगी। रिमूवल प्रोसेसेस नहीं देंगे, वो सिर्फ फॉर द टाइमिंग होता है। कैंटिलीवर प्रोसेस नहीं देंगे क्योंकि सेंट्रल इंसाइजर जो है वो अबटमेंट की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सेंट्रल इंसाइजर जब अबटमेंट की तरह काम कर रहा है वहाँ पे, तो कैंटिलीवर कैसे बनाएंगे? ठीक है, कैंटिलीवर प्रोसेसेस विद प्रीमोलर एज एन अबटमेंट। प्रीमोलर को कैसे सेकंड प्रीमोलर को अबटमेंट की तरह लगेंगे तो सेकंड प्रीमोलर भी थोड़े दिनों में बाहर निकल आएगा। तो वी विल गिव अ फिक्स प्रोसेसेस। ठीक है, कैंटिलीवर प्रोसेसेस नहीं देंगे। कैंटिलीवर ना ही सेंट्रल इंसाइजर को यूज़ करेंगे, ना ही हम सेकंड प्रीमोलर को यूज़ करेंगे। ऑलराइट, दूसरा सेंट्रल इंसाइजर भी नहीं, दूसरा लेटर इंसाइजर भी नहीं। फिक्स प्रोसेसेस इज द बेस्ट थिंग। बाकी सभी जो है वो बाकी दांत लेके भी बाहर निकाल देंगे उन्हें भी। नेक्स्ट, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम वीकनेस वाइल वर्किंग, और जब उसका ब्लड एग्जामिनेशन कराया तो देर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ अनीमिया। ठीक है, देर इज अ प्रेजेंस ऑफ अनीमिया एंड देर वॉज अ हिस्ट्री ऑफ अनीमिया। दिस हिज पेरिफेरल स्मीयर शोज न्यूट्रोफिल्स विद हाइपर सेगमेंटेड न्यूक्लियाई, न्यूट्रोफिल्स विद हाइपर सेगमेंटेड न्यूक्लियाई। ठीक है, एंड CNS डिस्टर्बेंस इज देयर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन लेड टू डेफिशिएंसी ऑफ दिस कंडीशन? ठीक है, कौन से वाइटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से ये कंडीशन अकर कर रही है? तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अगर अकर करती है तो ऐसी ऐसी कंडीशन बन जाती है। क्या क्या होता है इनमें? जो पेरिफेरल अगर स्मीयर लेते हैं तो न्यूट्रोफिल में हाइपर सेगमेंटेड न्यूक्लिया होते हैं। ठीक है, और CNS में डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है। Vitamin B12 is cobalamin that plays a crucial role in red blood cell formation, DNA synthesis and neurological functions. अगर vitamin B12 की deficiency होती है तो that leads to formation of megaloblastic anemia. Alright, ठीक है, क्योंकि इस बोन मैरो में हेल्प कर रहा है ना, बोन मैरो में सिंथेसिस के लिए हेल्प कर रहा है। मैकेनिज्म क्या करता है कि अगर मल्टीलोब न्यूट्रोफिल्स बन रहे हैं उसमें, तो विटामिन B12 जो है DNA की सिंथेसिस करवाता है। अब DNA की सिंथेसिस रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स के अंदर करवा रहे हैं तो वहाँ पे वो चाहिए रहता है, विटामिन B12 चाहिए रहता है ताकि ढंग से DNA की सिंथेसिस जो है वो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स इन द बोन मैरो जो है उनके अंदर हो सके। इन डेफिशिएंसी न्यूक्लियर मैचुरेशन डिलेड कर जाती है बिकॉज बट द साइटोप्लाज्म जो है वो मैच्योर कर जाता है नॉर्मल। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में जो मैचुरेशन का रेट है वो चेंज कर जाता है। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स में क्या होता है कि एक्स्ट्रा लोब्स 3 से 4 लोब्स जो है वो बन जाते हैं एंड दे हैव मोर देन 5 लोब्स एज वेल अगर वहाँ पे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो। ठीक है, क्योंकि साइटोप्लाज्म पहले डेवलप कर गया है तो जब तक साइटोप्लाज्म बूढ़ा होगा तब तक न्यूक्लियस जो है डिवाइड ही कर रहा होगा अभी। नेक्स्ट, पेशेंट अंडरगोन अ टोटल थायरॉइडेक्टमी प्रोसीजर फॉर पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। कौन सा कार्सिनोमा ऑफ थायराइड? पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड के लिए ये चीज़ करी उसकी। तो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर दैट इज़ विजिबल इन दिस स्ट्रक्चर? तो ये स्ट्रक्चर पूछ रहा है क्या चीज़ है। दिस इज़ ट्रेकिया। ऑलराइट, और इसके साथ जो ये पतली सी नर्व चल रही है, अगर इसको हम वाइट से दिखाएं तो दिस nerve is the recurrent laryngeal nerve. Next question is, identify the structure that is marked that helps in smooth flow of molten metal for the wax pattern in the casting. ठीक है, देखो ये हमारे पास हमने इनले से क्राउन बनाया है। ठीक है, क्राउन पूरा हमने कार्व करके बनाया, उसके ऊपर हम एक स्प्रू जैसा लगाते हैं। ठीक है, नाउ इस स्प्रू में एक मोटा सा हिस्सा होता है, एक फैला सा हिस्सा होता है। व्हाट इज दिस नोन एज? इट इज़ नोन एज द रिजर्वॉयर। इट विल एक्ट एज अ रिजर्वॉयर। ठीक है, ये एक रिजर्वॉयर की तरह एक्ट करेगा जब हम कास्टिंग करेंगे तो मोल्टन मेटल का स्मूथ फ्लो हो सके उसके लिए हम इसको लगाते हैं, इसको बनाते हैं, इस शेप को बनाते हैं। ये जो मोटी चीज़ है, इट इज़ नॉट स्प्रू फॉर्मर, इट इज़ नॉट अ क्रूसिबल, इट इज़ नॉट अ कास्टिंग रिंग, बट इट इज़ अ रिजर्वॉयर फॉर molten metal, okay, that permits smooth flow of molten metal. Next, a 22-year-old patient develops swelling on the lateral side of the neck in the posterior triangle. The swelling is increasing in size and partially compressible, and it is brilliantly translucent. The diagnosis will be what? Brilliantly translucent है अगर हम इसको लाइट के अंदर चेक करेंगे तो। ठीक है, अगर ट्रांसमिटेड लाइट के अंदर चेक करेंगे तो what? ये ट्रांसलूसेंट है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल है, पार्शली कंप्रेसिबल है और स्वेलिंग साइज के साथ इंक्रीज करती जा रही है। तो डायग्नोसिस क्या होगा? इट इज़ लिम्फ एंजियोमा। इट इज़ व्हाट? इट इज़ लिम्फ एंजियोमा। लिम्फ एंजियोमा के साथ कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं। ठीक है, जैसे वीनस मालफॉर्मेशन होगा, अगर वीनस मालफॉर्मेशन या हीमैंजियोमा होगा तो वहाँ पे ब्लूइश डिस्कलरेशन पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, एंड इट्स सॉफ्ट कंप्रेसिबल मे स्वेल विद डिपेंडेंसी और वल्साल्वा मैनुअर। मतलब यहाँ पे डिपेंडेंसी रहती है जो वीनस मालफॉर्मेशन होती है। अगर लिपोमा बन रहा है उतना बड़ा तो सॉफ्ट मोबाइल नॉन टेंडर होता है और नॉन ट्रांसलूसेंट होता है, यूजली कंप्रेसिबल होता है अगर लिपोमा की बात आ रही है। ओके, दीज आर सम डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ दिस। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द इंक्रीमेंटल केयर हेल्थ इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम इट इज़ डन एट द इंटरवल ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? तो इंक्रीमेंटल केयर प्रोग्राम जो है वो 12 मंथ के इंटरवल में किया जाता है, 12 मंथ के इंटरवल में
इंक्रीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम किया जाता है। नेक्स्ट, एंटी एपोप्टोटिक जीन इन द फॉलोइंग इज, 4 ऑप्शन दिए, BCLX, BCL2, BAD, BAK। BCL2, it is an anti-apoptotic gene. BCL2 is an anti-apoptotic gene. We have two kinds of gene. First are pro-apoptotic and second one are anti-apoptotic. Okay, BAX, BAK, BCLX, BAD, BID, BIK, HRK. These are pro-apoptotic genes. ठीक है, मतलब इनके आगे डैश करके कुछ नहीं लिखा हुआ, डैश करके कुछ नहीं लिखा हुआ इनके आगे। ठीक है, अब हमारे पास एंटी एपोप्टोटिक जीन्स की बात करते हैं। एंटी एपोप्टोटिक जीन्स, इसमें आता है BCL-2, BCL-XL, BCL-W, BFL-M, BRAG-1, MCL-1, A-1। जो डैश वाले हैं दे आर मैक्सिमम एंटी एपोप्टोटिक जीन्स। नेक्स्ट, इंप्रेशन मेथड फॉर फ्लैबी रिज इज विच वन? इंप्रेशन मेथड फॉर फ्लैबी रिजेस इज बाय इरिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड। ठीक है, द प्राइमरी इंप्रेशन शुड बी मेड विद द म्यूकोस्टैटिक इंप्रेशन मटेरियल, लो विस्कोसिटी म्यूकोस्टैटिक इंप्रेशन मटेरियल्स इंक्लूड अगार, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल, इंप्रेशन प्लास्टर, लो विस्कोसिटी एल्जिनेट, ऑल लाइट बॉडी इलास्टोमर्स, ठीक है, या फिर इंप्रेशन वैक्स। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इकदास क्लासिफिकेशन, एक इमेज दे रखी है, इसमें ये स्लाइटली लीजन प्रेजेंट है, बहुत ही स्लाइट लीजन प्रेजेंट है। सो व्हाट विल यू कॉल इट एज? इट इज़ नोन एज मॉडरेट लीजन अकॉर्डिंग टू इकदास क्लासिफिकेशन। ठीक है, इकदास क्लासिफिकेशन में हम 0 से लेकर 6 स्कोर देते हैं, 0 to 6 स्कोर। अगर हम 0 स्कोर कहते हैं तो देर इज़ नो विजुअल साइन ऑफ केरियस लीजन और एनी अदर इनामल डिफेक्ट। कोई भी ना इनामल डिफेक्ट होता है 0 में, ना ही कोई विजिबल साइन होते हैं। स्कोर 1 में क्या होते हैं? विजिबल साइन शुरू हो जाते हैं अर्ली इन द इनामल। जैसे इनामल को जब हम ड्राई करेंगे तो उसमें एरियाज ऑफ डिस्कलरेशन दिखाई दे सकती है, फिर कन्फाइन टू एरियाज ऑफ पिट दिखाई सकती है, छोटी छोटी डिस्कलरेशन, जो कि स्कोर 1 दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से केरीज नहीं बोलोगे इसको, दैट इज द इकदास स्कोर 1। स्कोर 2 में क्या होता है हमारे पास कि स्कोर 2 में चेंजेस इन द एनामल आर विजिबल, ब्लैक जो डॉट्स हैं वो विजिबल हो जाते हैं विदाउट ड्राइंग। ठीक है, मॉइस्चर कम करे हम पिट्स के अंदर, ये चीज़ें जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, अब स्कोर 3 आता है इसके बाद। स्कोर 3 में देर इज डिस्ट्रक्शन लोकेटेड इन द इनामल विदाउट विजिबल डेंटिन, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इनामल सरफेस। स्कोर 3 में डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द इनामल सरफेस यू कैन परसीव, आपको दिखेगा कि कौन सी जगह है जहाँ पे मतलब खाना इजीली फंस सकता है या कोई भी चीज़ इजीली फंस सकती है, वो इजीली जगह जो है वो दिखती है। दैट इज द स्कोर 3। ओके, नाउ उसके बाद आता है स्कोर 4। स्कोर 4 में जो टूथ का इनामल है उसमें डार्क शेडो आना स्टार्ट हो जाती है, दैट रिप्रेजेंट्स कि नीचे कोई ना कोई दिक्कत है। ठीक है, डार्क शेडो ऑन द अंडरलाइंग डेंटिन विद और विदाउट लोकलाइज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ इनामल। इनामल नॉर्मल है और जो डेंटिन है वो अंदर से ख़राब हो रही है, बिकॉज कोई ना कोई पिट से यहाँ पे खुल चुका है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर जा चुके हैं, केरीज एक्टिविटी हो रही है, तो जो डेंटिन है वो डार्क हो जाती है। दैट इज स्कोर 4। स्कोर 5 में क्या होता है? देयर इज क्लियर विजिबल डेंटिन cavity that involves less than half of the dental surface, less than half of the dental surface पे डेंटिन इन्वॉल्व हो चुकी है, प्लस इनामल का सरफेस भी ब्रेक डाउन हो चुका है, मतलब इनामल का सरफेस में भी ब्रेक है। स्कोर 6, जब अच्छी खासी केरीज होती है, जब एक्सटेंसिव कैविटी एविडेंट है इन द डेंटिन, कैविटी डीप है, वाइड है, इन्वॉल्व कर रही है मोर देन हाफ ऑफ द टूथ, देन दैट इज नोन एज स्कोर 6 इन इकदास क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, लिग्नोकेन ओवरडोज कॉजेज कन्वर्जन एट व्हाट डोज? लिग्नोकेन की ओवरडोज होती है अगर ग्रेटर देन 7.5 ग्राम पर केजी जा रही है तो उसके बाद वो ओवरडोज करना शुरू कर देता है, तो ओवरडोज वाले सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, दैट इज कन्वर्जेंस। ठीक है, क्लिनिकल सिचुएशन की बात करें, अगर एंटी कन्वर्सिव एक्शन हमें चाहिए तो वी गो फॉर 0.5 to 4 माइक्रोग्राम पर ml हमारे पास लिग्नोकेन होना चाहिए, माइक्रोग्राम पर ml। अगर प्री सीजर की पेशेंट की बातें कर रहे हैं तो वहाँ पे 4.5 to 7 माइक्रोग्राम पर ml से ज़्यादा डोज नहीं होनी चाहिए। अगर सीजर आने वाली डोज जो है वो कितनी होती है? दैट इज़ ग्रेटर देन 7.5 माइक्रोग्राम पर ml ऑफ द ड्रग। ठीक है, नाउ एट नॉर्मल आर्टीरियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड a lignocaine blood level between 7.5 to 10 microgram per ml usually shows the result in a compulsive episode or a convulsive episode. When जब कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल इंक्रीज हो जाते हैं, the blood level of local anesthetic necessary for the seizures it also decreases. ठीक है, now while the duration of the seizure increases, seizure activity is generally self-limiting because the cardiovascular activity is not
significantly impaired and the redistribution and biotransformation of the local anesthetic molecule through the body channels like liver, it continues to occur. ठीक है, this result in decrease of level of anesthetic blood level. ठीक है, एनेस्थेटिसिया का जो है ब्लड में लेवल डिक्रीज करता जाता है. And there is termination of seizure activity usually within 1 minute of airway maintenance, but you have to maintain the airway. ठीक है, डोज कितनी है, ग्रेटर देन 7.5 माइक्रोग्राम पर ml इन द ब्लड टू 10 माइक्रोग्राम पर ml इन द ब्लड. अगर इस डोज में भी आ गया है तो वहाँ पे सीजर्स आपको देखने को मिल सकते हैं. नेक्स्ट, वाइट और क्ले स्टूल इज सीन इन विच डिजीज. देखो, ज़्यादातर अगर बाइल डक्ट की कोई डिजीज़ है, बाइल डक्ट ब्लॉक हो गई है, तो द लैक ऑफ बाइल दैट विल शो वाइट और क्ले कलर्ड स्टूल. ठीक, लाइट कलर्ड वाइट और क्ले कलर्ड स्टूल, अ लैक ऑफ बाइल इन द स्टूल may indicate the bile duct obstruction. It may indicate the bile duct obstruction. Reduced flow of bile can be caused by liver infections. Reduced flow of bile can be caused by liver infections, gallstones and cancer. Next, knee jerk reflex. Knee jerk reflex. It is type of what reflex? It is a deep tendon reflex. ठीक है, knee jerk reflex जो है वो myotactic reflex है. That is also known as stretch reflex, the knee jerk reflex and the deep tendon reflex. ये इसके बाकी नाम है. Next, in recurrent nerve palsy और unilateral recurrent nerve palsy. ठीक है, कौन सी नर्व, laryngeal nerve palsy. What is seen? अगर larynx की नर्व जो है वो उसकी palsy होगी तो there will be hoarseness of voice. Recurrent laryngeal nerve palsy occurs in 5 to 11% of cases. 5% से 11% of cases में ये चीज़ अकर करती है. Following thyroidectomy. थायरॉयडेक्टोमी के जो ऑपरेशन उसके बाद कॉमनली होती है एंड इट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन इन अर्ली कॉम्प्लिकेशन आफ्टर थायरॉयडेक्टोमी. ठीक है, यूनिलेटरल रेकरेंट नर्व पैलेसी और रेकरेंट नारेंजियल नर्व पैलेसी इंजरी produces abductor vocal cord paralysis. The affected vocal cord assumes a paramedian position. Patients often present with post-operative hoarse voice, HOARSE voice. ठीक है, एकदम खराश वाली वॉइस आती है. The effects of laryngeal nerve injury on the voice are, अगर superior laryngeal nerve हमारी affect होती है, unilaterally हुई है तो minimal effects will be there. If superior laryngeal nerve bilaterally affected, then hoarseness of voice and tingling of the voice and along with tiring of the voice will be seen. Alright. If recurrent nerve गई है, ठीक है, recurrent laryngeal nerve की palsy हो गई है, तो अगर वो यूनिलेटरल है तो देन देयर विल बी हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस. अगर बाइलेटरल है, एक्यूट में क्या होता है, स्ट्रेडर आ जाता है, मतलब एक हवा वाली जो हवा है वो आवाज़ के साथ निकल रही थी, हवा निकल रही थी. अलॉन्ग विद दिस देयर इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. अगर क्रॉनिक है देन देयर विल बी एफोनिया, मतलब बंदा ढंग से बात ही नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट आती है अगर वेगस नर्व की पैल्सी हो जाती है. वेगस नर्व की पैल्सी हो जाती है, यूनिलेटरली हुई है, देन इट विल कॉज हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस. अगर गले वाले रीजन में वेगस नर्व की पैल्सी हो रही है तो. बायलेटरली हुई है तो देयर विल बी एफोनिया, द पर्सन विल नॉट बी एबल टू स्पीक. नेक्स्ट, फिक्स पेमेंट अ डेंटिस्ट सिक्योर्स इवन इफ द पेशेंट डज नॉट take advantage of the treatment. What is this treatment known as? It is known as capitation plan. All right, capitation plan का क्या होता है कि it is a contract whether HMO group practice IPA और individual dentist कोई भी practice कर रहा है, चाहे वो पूरा ग्रुप है, चाहे वो एसोसिएशन है, चाहे वो डेंटिस्ट है, वो एक नेगोशिएटेड सम मंथली रिसीव करता है बाय ऑल हिज पेशेंट्स. ठीक है, मतलब एक सब्सक्रिप्शन की तरह रिसीव करता है. द मनी इज पेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट पेशेंट द यूटिलाइज द केयर और नॉट. ठीक है, इन रिटर्न पेशेंट इज एंटाइटल्ड टू रिसीव अ प्रिस्क्राइब सेट ऑफ सर्विसेज ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, मतलब पेशेंट एक सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है, अगर उस टाइम पीरियड के दौरान पेशेंट को कोई भी दिक्कत होती है तो वो एक सेट ऑफ सर्विसेज में से जो इस पेमेंट से महंगी होंगी ऑब्वियसली, उनमें से कुछ भी करवा सकता है. ठीक है, और उसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है उस टाइम, वो इस सब्सक्रिप्शन में से ही कटेगा. वो अपनी ट्रीटमेंट करवाए चाहे ना करवाए, उसको बस सब्सक्रिप्शन देनी है. दैट इज़ नोन एज अ कैपिटेशन प्लान. नेक्स्ट, वाइल गोइंग फ्रॉम बेसल टू सुपरफिशियल लेयर, केराटिनोसाइट अंडरगोज व्हाट. देखो, बेसल से सुपरफिशियल लेयर तक जाते जाते केराटिनोसाइट जो है वो डिफरेंशिएशन शो करता है. इट शोज व्हाट, डिफरेंशिएशन. इट डज नॉट शो मैच्योरेशन, इट डज नॉट शो प्रोडक्शन, इट ओनली शोज डिफरेंशिएशन. Keratinocyte only shows differentiation while going from basal to superficial layer. देखो, stratum basale, stratum spinosum, stratum granulosum and then stratum corneum. CPG
CGPB, ठीक है, ऐसा इनका जो लेयर्स का जो नाम है वो उनकी मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस की वजह से दिया गया. A single cell at a different times as a part of each layer is there. ठीक है, आफ्टर माइटोसिस इट may remain in the basal layer and divide again, or it may become determined during which it migrates and is pushed upwards. During its migration and as a keratinocyte, during the migration of cell as a keratinocyte, it becomes committed to the biochemical and morphological changes in these layers. ठीक है, so this term or this change in the biochemical and morphological changes from going from basal to the uppermost layer, ठीक है, it is known as differentiation. Differentiation ends with the formation of keratinized squamous epithelium, a dead cell filled with densely packed protein contained with toughened cell membrane. After reaching the cell surface, it is shed or casted off. The process of shedding off of the epithelial cells is known as desquamation of the cells. ठीक है, शेडिंग ऑफ को क्या बोलते हैं? desquamation of the cells. The process of cell migration from the basal layer of the surface is called as maturation. Basal layer से लेकर superficial तक जो जा रहा है that is known as maturation. The time taken for the cell to divide and pass through the entire epithelium is termed as turnover time or turnover rate. The turnover rate of oral mucosa is faster than the skin but slower than the intestinal mucosa. Intestinal mucosa का जो turnover rate होता है वो ज़्यादा होता है सबसे ज़्यादा, फिर आता है oral mucosa का turnover rate और oral mucosa का ज़्यादा होता है than skin. ठीक. Next, neurogenic shock causes what? Neurogenic shock causes hypotension and bradycardia. ठीक है. Now, neurogenic shock अगर होता है तो it manifests in the form of hypotension, bradyarrhythmia and temperature dysregulation due to the peripheral vasodilation following the injury to the spinal cord. That is the neurogenic cause. मतलब नीचे जो है कंट्रोल जो है वो लूज हो चुका है. This occurs due to the sudden loss of sympathetic tone. Sympathetic tone sudden loss will be there with the preserved parasympathetic function leading to autonomic instability. Autonomous nervous system जो है वो instable हो जाएगा. हम खुद कॉन्शियस होंगे बट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो फीचर्स हैं, जो वो चीज़ें कर रहा है बॉडी के अंदर, वो अनस्टेबल हो जाएंगे इन दिस न्यूरोजेनिक शॉक विच विल फाइनली लीड टू हाइपोटेंशन ऑफ द बॉडी एंड ब्रैडीकार्डिया इन द बॉडी. क्योंकि जो हमारा हार्ट है और जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से ही रेगुलेटेड है. नेक्स्ट, विच इज़ द ब्रांच ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी. थर्ड पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी जो है उसकी ब्रांच होती है स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी. लेट्स टॉक अबाउट द ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी. इसके 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट इज डीप ऑरिकुलर, एंटीरियर टिम्पैनिक, मिडिल मेनिंजियल, एसेसरी मेनिंजियल एंड इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्रांच. ठीक है, नर्व नहीं, आर्टरी की ब्रांच है, आर्टरी की ब्रांच है. इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी की ब्रांच मैक्सिलरी से आ रही है, एसेसरी मेनिंजियल की आ रही है, मिडिल मेनिंजियल की आ रही है, एंटीरियर टिम्पैनिक की आ रही है, डीप ऑरिकुलर की आ रही है. अब बात आती है सेकंड पार्ट के बारे में. सेकंड पार्ट से 4 निकलेंगी. डीप टेम्पोरल, पहली थी डीप ऑरिकुलर, फर्स्ट पार्ट में डीप ऑरिकुलर गई, सेकंड पार्ट में डीप टेम्पोरल जा रही है. सेकंड टू टेरिगॉइड, थर्ड टू मैसेट्रिक एंड फोर्थ टू बक्कल. ये सेकंड पार्ट हो गया. अब बात आती है थर्ड पार्ट के बारे में. थर्ड पार्ट में वी हैव पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी PSA, इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, pharyngeal artery, artery to the pterygoid canal, artery to the pterygoid canal, and then sphenopalatine artery, that is the terminal part of the maxillary artery. Sphenopalatine artery third part में terminal part होता है. Next, a swimmer had pain in external ear. On microscopic examination, he starts coughing. Which nerve is involved? जो हमने कान को छुआ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए, या फिर उसको मतलब कान को छू के हमने अंदर देखने की कोशिश की, तो हमारी वेगस नर्व जो है स्टिमुलेट हो जाती है. सो वेगस नर्व इज स्टिमुलेटेड, दैट इज मीन्स द वेगस नर्व इज हैविंग एनी प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ दिक्कत है. आर्नोल्ड्स नर्व ईयर कफ रिफ्लेक्स इज रिकग्नाइज्ड इन द पेशेंट्स अनकॉमनली but with chronic cough. If it is recognized, it is recognized with a chronic cough. आप कान को छुएंगे, कान को अंदर देखेंगे तो बंदा जो है वो खांसने लग पड़ेगा. In these patients, the mechanical stimulation of the external auditory meatus can activate the auricular branches of the vagus nerve. कौन सी branches? Auricular branches of the vagus nerve. This is also known as Arnold's nerve. Arnold's nerve. And they evoke a cuff reflex. इसकी वजह से cuff reflex initiate हो जाता है. This is an example of hypersensitivity of vagal afferent nerves. Next, a 4-year-old child who has been diagnosed with a cerebral palsy arrives at the dental clinic. The patient was showing difficulties
protruded tongue and excessive salivation was there. There is hypertonicity of the neck muscles and the mouth is being constantly open. Also there is slow twisting of involuntary muscles and there is movement in the involuntary muscle. Involuntary muscle करे जा रहा है, मतलब involuntary movement होती जा रही है उसकी. What type of cerebral palsy is this? This is dyskinetic cerebral palsy. What kind? Dyskinetic cerebral palsy. Dyskinetic cerebral palsy, it is also known as athetosis and chorioathetosis. ठीक है, it is seen in 15% of the cases. There is controlled and uncontrolled motion of uninvolved muscles. मतलब कुछ चीज़ करने जा रहा है तो बाकी मसल भी हिल रहे हैं. ठीक है, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट हो रही है दूसरे मसल्स की भी. इन्वॉल्व हो चाहे ना हो वो मसल्स, उनकी मूवमेंट हो ही रही है. देयर इज स्लो सक्सेशन, ट्विस्टिंग एंड रेथिंग ऑफ इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स, दैट इज नोन एज एथिटोसिस. ठीक है, जो ट्विस्टिंग मूवमेंट हो जाती है, इनवॉलेंटरी मूवमेंट एथिटोसिस बोलते हैं उसको. या फिर क्विक मूवमेंट हो सकती है, जर्की मूवमेंट हो सकती है. जर्की मूवमेंट को हम कह सकते हैं कोरियो एथिटोसिस. स्लो मूवमेंट है लेकिन इनवॉलेंटरी है तो दैट इज एथिटोसिस. कोरियो एथिटोसिस तब बोलेंगे जब एकदम जर्किंग मूवमेंट्स आएंगे. Frequent involvement of the neck musculature which result in excessive movement of the head. There is hypertonicity of these muscles that may cause the head to be held back, with the mouth constantly being open and the tongue is positioned anteriorly or protruded. जीभ बाहर होती है, मुंह खुला पड़ा होता है, हाइपरटोनिसिटी हो जाती है हेड मसल्स की और हेड को वो पीछे लेके जाता है बिल्कुल. ठीक है, नाउ possibility of frequent uncontrolled jaw movements could be there. That could be abrupt closure of the jaws and severe bruxism could also be there. There is frequent hypotonicity with perioral musculature involved, with the mouth breathing, tongue protrusion and excessive drooling from the face. There will be a facial grimacing, मतलब facial grim जैसी एक facial appearance बन जाएगी. Chewing and swallowing difficulties तो आएंगी. अब इतनी ज़्यादा muscle problems है तो speech में भी दिक्कत आएंगी. So this is known as a dyskinetic. अपनी काइनेसिस को मेंटेन नहीं कर पा रहा है पेशेंट. इट इज़ नॉट स्पास्टिक, इट इज़ नॉट एटैक्सिक, इट इज़ डिस्काइनेटिक type of cerebral palsy, and it is not a mixed cerebral palsy. It is not. It is dyskinetic. Next, an acquired muscular pattern wherein there is a forward mandibular deviation in turn causing anterior maxillary segment to lock behind is called as pseudo class 3 malocclusion. ठीक है, आंसर है pseudo class 3 malocclusion. Dentoalveolar anterior crossbite represents a linguo version of one or more maxillary anterior teeth with resulting locking behind the opposite mandibular teeth. ठीक है, जो anterior teeth होते हैं अपर वाले, वो maxillary जो maxillary वाले हैं वो mandibular के पीछे लॉक हो जाते हैं. ठीक है, this is class 3. The anterior crossbite is usually an acquired malocclusion resulting from local etiological factors. For example, over-retained primary incisors that interfere with the normal erupting position of the maxillary anterior teeth. उसकी वजह से maxillary anterior teeth पीछे को निकल गए, उसकी वजह से maxillary anterior जो है वो लॉक हो जा रहे हैं mandibular के पीछे. In some cases during the closure movements, the premature contact due to the lingual malpositioning may result in the forward mandibular deviation to affect full closure that locks the anterior segment in crossbite posture involving multiple teeth. Such an acquired muscular pattern is referred to as pseudo class 3 malocclusion. मतलब वहाँ पे class 3 malocclusion skeletal नहीं है लेकिन दांत रिटेन्ड रह गए हैं पहले से, उसकी वजह से जो अगले दांत निकले हैं, जो परमानेंट दांत निकले हैं, वो अपनी पोजीशन से पीछे या आगे को निकल रहे हैं, जिसकी वजह से pseudo class 3 occlusion हो जा रहा है. And the mandible shifts from class 1 to class 3 relationship during the closure. In most cases, localized dentoalveolar anterior crossbites with or without mandibular displacement should be treated as soon as they are discovered. They should be treated as soon as they are discovered. Delayed treatments can lead to serious complications such as loss of arch dimensions and asymmetric midlines. Loss of arch dimension हो जाता है, asymmetric midlines हो जाती हैं, traumatic occlusion with tripling of gingival tissue on the labial aspect of the lower teeth, wear facets on the uninvolved incisors, and untoward growth patterns in a functional shift is involved. अगर functional shift है तो हम untowards growth pattern को चेक करते हैं. ठीक है, labial aspect पे अगर stippling वगैरह है तो वो भी चेक की जाती है. wearing off हो रही है involved incisor की, वो भी चेक की जाती है. हर चीज़ चेक की जाती है इसमें. ठीक है, it is a pseudo class 3 malocclusion, which is a acquired muscular response, not a skeletal problem. Next is lower motor neuron lesion of the facial nerve causes what? Lower motor neuron का lesion है तो this will cause the ipsilateral half
ऑफ द फेस बीइंग अफेक्टेड, मतलब जो सेम साइड का फेस है वो पैरालाइज हो जाता है। बट अगर अपर मोटर न्यूरॉन का लीजन है या फिर सुपरा न्यूक्लियर लीजन है इन द अपर मोटर न्यूरॉन ऑफ द फेशियल नर्व, दैट इज फेशियल नर्व हमारी कौन सी होती है, 7 होती है, देन ओनली द लोअर हाफ ऑफ द फेस इज अफेक्टेड और पैरालाइज ड्यू टू बायलेटरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अपर 1/3 ऑफ द फेस, क्योंकि अपर 1/3 ऑफ द फेस जो होता है वो बायलेटरली रिप्रेजेंटेड होता है, मतलब दोनों साइड की जो नर्व्स हैं वो उसको इनर्वेट कर रही होती हैं, इसलिए उसकी जो पैरालिसिस है वो इतनी जल्दी नहीं होती। तो फ्रंटालिस मसल की पैरालिसिस इतनी जल्दी नहीं होती जब तक दोनों साइड नहीं उड़ गई, ठीक है। अब अगर इंफ्रा न्यूक्लियर लीजन है, ठीक है, इंफ्रा न्यूक्लियर लीजन है, दैट इज लोअर मोटर न्यूरॉन पैल्सी है, तो वहां पे एक साइड ऑफ द फेस पैरालाइज हो जाता है। फ्लो चार्ट टू चेक इफ देयर इज यूनिलेटरल फेशियल ड्रूप इन एटलीस्ट 2/3 ऑफ द फेस, तो अगर हाँ है प्रेजेंट तो फोरहेड मसल्स को चेक करेंगे। अगर फोरहेड मसल्स फंक्शनली है दोनों साइड पे तो हाँ है, अगर दोनों साइड पे फोरहेड मसल्स ठीक से काम कर रहे हैं तो देयर इज अ अपर मोटर न्यूरॉन फेशियल नर्व का लीजन, ठीक है। अगर फोरहेड मसल काम नहीं कर रहे हैं और सेम साइड पे लोअर 2/3 जो है ड्रूप कर रहा है तो देयर इज अ लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन के लीजन में सिर्फ ये चीज़ जाती है, नीचे का एक फेस जाता है। लोअर मोटर न्यूरॉन के रीजन में पूरा का पूरा हाफ फेस ही सुन्न पड़ जाता है, पैरालाइज हो जाता है, ठीक है। दिस इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स, कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स, अपर मोटर न्यूरॉन का रीजन है। बीच में यहाँ पे मिक्स हो रहे हैं ना, ये मिक्स हो रही है नर्व्स, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत अगर होती है तो ईजिली इतनी जल्दी अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ लोअर हिस्सा ही जाता है, ऊपर जो फ्रंटालिस वगैरह मसल है इनको दूसरी साइड से इनर्वेशन आ जाती है। लेकिन अगर लोअर मोटर न्यूरॉन पे लीजन हुआ है, इंफ्रा न्यूक्लियर लीजन हुआ है तो देयर विल बी पैरालिसिस ऑफ अपर एज वेल एज लोअर फेस ऑफ द सेम साइड, दैट इज नोन एज बेल्स पैल्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नटसन टेक्निक इज एडवाइज टू बी यूज्ड एट व्हाट एज, कितने साल की उम्र पे नटसन टेक्निक यूज़ की जाती है। फर्स्ट इज 3 ईयर्स पे, 7 ईयर्स पे, 11 ईयर्स पे, 13 ईयर्स से, कोइंसाइडिंग विद द इरप्शन ऑफ परमानेंट एंड न्यू टूथ, जो भी नया दांत निकल रहा है उसके इरप्शन के साथ कोइंसाइड होना चाहिए। इन नटसन टेक्निक इन द इनिशियल अपॉइंटमेंट द टीथ आर क्लीन्ड विद द प्यूमिस स्लरी से दांतों को साफ किया जाता है एंड देन आइसोलेटेड विद द कॉटन रोल्स एंड देन ड्राइड विद द कंप्रेस एयर, ओके। यूजिंग कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर स्टिक्स, 2% sodium fluoride solution is painted on the air dry teeth so that all the surfaces are visibly wet with the sodium fluoride जो हमारा solution है उसके साथ, ठीक है। Now the procedure is repeated for each isolated tooth segment until all the teeth are treated. But सारे दांतों को ध्यान रखना कि सारे दांत जो है वो clean होने चाहिए, plus they should be dry and they should allow the sodium fluoride to air dry for 3 to 4 minutes, ठीक है। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर एप्लीकेशन में हम साफ नहीं करते दांतों को, प्रोफाइलैक्सिस दोबारा नहीं करते, ठीक है। एंड इज शेड्यूल्ड एट एन इंटरवल्स ऑफ 1 वीक, ठीक है। मतलब हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ प्रोफाइलैक्सिस एक हफ्ते बाद करते हैं इसी 3 साल की उम्र में। 3 साल में 4 बार, 7 साल का जब पहुँचेगा तब 4 बार, 11 साल का जब पहुँचेगा तब 4 बार और 13 साल का जब पहुँचेगा तब 4 बार। दे शुड बी कोइंसाइडिंग विद द डिफरेंट इरप्शन और पैटर्न ऑफ द डिफरेंट टीथ। Next question is herringbone pattern is seen in which of the following? Herringbone pattern is seen in fibrosarcoma, ठीक है। Now intermediate grade tumors of the fibrosarcoma are cellular and have typical herringbone pattern showing diagnostic parallel sheets of cells that are arranged in an intertwining whorls, okay। ये होता है herringbone pattern ऐसे से। It is an arrangement of rectangular columns or columns that are in parallel lines so that these columns intersect in a zigzag way. In histopathology, this arrangement of cells in parallel lines which intersect in a zigzag manner, it is known as herringbone pattern. It is seen in 2 case conditions. First is fibrosarcoma and second is monophasic synovial sarcoma. Monophasic synovial sarcoma और fibrosarcoma 2 चीज़ों के अंदर देखा जाता है। Next, a father of 4-year-old child visits local dentist after noticing a white lesion in the front teeth of his son depicted by this black arrow. ये white lesion जो है, identify the lesion. These are white lesions that are initial smooth surface caries lesions, या फिर इनको initial carious lesions भी बोल सकते हैं। The American Academy of Pediatric Dentistry AAPD, it defines early childhood caries as the presence of 1 or more non-cavitated, cavitated, missing, पहली चीज़ आती है non-cavitated, cavitated, then missing, filled tooth in any of the primary tooth in a child 71 months of age or younger.
American Association of Pediatric Dentistry also specifies that the children younger than 3 years of age, any sign of smooth surface caries. अगर 3 साल से छोटा बच्चा है तो कोई भी sign of smooth surface caries, it is indicative of severe early childhood caries. That is SECC. Question: The right kidney is at which vertebral level? Right kidney जो होती है वो T12 पे होती है, ठीक है. T12 पे right kidney. The left kidney is located at the level of about the T12 से लेकर L3 के बीच में होती है left kidney. Whereas the right kidney is lower due to the slight displacement by the liver. Right is lower due to slight displacement by the liver and left is slightly upwards due to non-displacement in other side. Okay, तो T12 पे ही होते हैं. T12 से लेकर L3 के बीच में. T12 पे इनका अपर लोब टच कर रहा होगा, L3 तक इनका जो है वो लोअर लोब किडनी का जो है टच कर रहा होगा. Next, the organic lining of calcified dentinal tubules, it is known as lamina limitans. Lamina limitans. It is the organic lining. ठीक है, that's the organic sheath membrane lining the dentinal tubules seen in EM or electromicroscopic sections. It is also known as lamina limitans. Alveolar bone proper appears on the radiograph as a thick radio-opaque line adjacent to the alveolar socket termed as lamina dura. Alveolar socket के अराउंड जो alveolar bone दिखती है वो एक थिक लाइन की तरह दिखती है, थिक रेडियोपेक लाइन की तरह दिखती है, जिनको हम कहते हैं लमाइना ड्यूरा. लमाइना प्रोपरिया की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज फाउंड अंडर द थिन लेयर ऑफ टिश्यूज कवरिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन. लमाइना प्रोपरिया इज द कनेक्टिव टिश्यू फाउंड अंडर द थिन लेयर ऑफ टिश्यूज कवरिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन. ओके, नाउ ये दोनों डेफिनेशन भी आ सकती हैं, इसलिए इनको डिस्कस किया है, लमाइना ड्यूरा एंड लमाइना प्रोपरिया. और ऑर्गेनिक लाइनिंग जो थी हमारी कैल्सिफाइड डेंटिनल ट्यूब्यूल्स की, वो थी लमाइना लिमिटेंस. Next question: A patient comes to you with the following radiograph with radiopaque, thin, translucent rim surrounding the entire structure of the tooth. Identify the lesion. ये वाला, इस lesion को identify करना है, ठीक है. Now this answer is given is that is cementoblastoma दिया हुआ आंसर यहाँ पे. Now hypercementosis or cemental dysplasia, it is an adaptive change in the periodontal ligament characterized by increased cementum thickness. ठीक है, हाइपरसीमेंटोसिस में क्या होता है कि इंक्रीज सीमेंटम थिकनेस हो जाती है रूट सरफेस के ऊपर, मोस्ट कॉमनली अफेक्टिंग द अपाइकल थर्ड ऑफ द रूट्स. हाइपरसीमेंटोसिस मे अफेक्ट अ सिंगल टूथ और मल्टीपल टूथ एंड दिस कंडीशन इज एसिम्प्टोमेटिक एंड इज डिटेक्टिव अपॉन रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ओनली. Okay, systemic conditions are associated with hypercementosis that are acromegaly, goiter, arthritis, rheumatoid fever, calcinosis, Gardner's syndrome, Paget disease, विटामिन ए डेफिशिएंसी, ये सब हाइपरसीमेंटोसिस के साथ एसोसिएटेड डिजीजेस देखी गई. ओके, अब सीमेंटोसिस डिस्प्लेसिया में क्या देख रहे हैं हम कि बोन इज रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस टिश्यू एंड अबनॉर्मल बोन प्लस वाइटैलिटी प्लस लमाइना ड्यूरा इज लॉस्ट. वाइटैलिटी लॉस हो जाती है इसमें, पहले वाले में अबनॉर्मल बोन लॉस हो जाती है, ठीक है. अबनॉर्मल बोन फॉर्मेशन होगी, वाइटैलिटी लॉस होगा और फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन होगी. रेडियोलुसेंट मिक्स डेंसिटी ऑफ रेडियो ओपेक एंड रेडियोलुसेंट रिम देखा जाएगा. मिक्स डेंसिटी रेडियो ओपेक एंड बीच बीच में रेडियोलुसेंसी भी देखी जाएगी इन फर्स्ट सीमेंटोऑसियस डिस्प्लेसिया. आती बात सेकंड वाले के बारे में. यहाँ पे बोनी प्रोलिफरेशन जो होती है वो अपाइकल इन्फ्लामेशन की वजह से हो रही है. अपाइकल इन्फ्लामेशन की वजह से, कंडेंसिंग ऑस्टियाइटिस में अपाइकल इन्फ्लामेशन की वजह से बोनी फॉर प्रोलिफरेशन हो रही है. पल्पाइटिस और नेक्रोसिस ऑफ द टूथ इज ऑल्सो सीन इन दिस. देयर इज अमॉर्फस रेडियोपेसिटी विद वाइडन पीडियल स्पेस. पीडियल स्पेस जो है वो वाइडल कर जाता है और अमॉर्फस रेडियोपेसिटी जो है इसमें देखी जाती है. तीसरी बात आती है इडियोपैथिक ऑस्टियोस्क्लेरोसिस की. एरिया ऑफ द इंक्रीज्ड बोन डेंसिटी प्लस अननोन ओरिजिन. एरिया ऑफ इंक्रीज्ड बोन डेंसिटी प्लस ओरिजिन अननोन होता है. वाइटैलिटी इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है. नाउ अमॉर्फस रेडियो ओपेसिटी इज विद रेगुलर पीडियल स्पेस. पीडियल स्पेस भी रेगुलर है और एक अमॉर्फस रेडियोपेसिटी इसके नीचे देखी जाती है, दैट इज इडियोपैथिक ऑस्टियोस्क्लेरोसिस. फोर्थ बात आती है हाइपरसीमेंटोसिस के बारे में. यहाँ पे एक्सेसिव बिल्डअप हो जाता है ऑफ द नॉर्मल सीमेंटम. नॉर्मल सीमेंटम का ही एक्सेसिव बिल्डअप है हाइपरसीमेंटोसिस में, ठीक है. बल्बलस रूट हो जाती है विद पीडियल स्पेस. विद इन पीडियल स्पेस जो है वो रूट जो है वो बल्बस हो जाती है क्योंकि सीमेंटम का ही हाइपर डेपोजिशन हो जा रहा है, इंक्रीज डेपोजिशन हो जा रहा है, ठीक है. वाइटैलिटी तो रहती है इसमें, वाइटर रहता है. नाउ नेक्स्ट सीमेंटोब्लास्टोमा. इट इज अ रेयर न्यूप्लाज्म ऑफ द सीमेंटम अटैच्ड टू द रूट. वाइटैलिटी इज देयर बट ऑफन पेनफुल. सीमेंटोब्लास्टोमा इट इज अ benign neoplasm of the cementum attached to the root. Cementum attached to the root रहता है. Vitality is there but it is painful. Vitality is there in cementoblastoma but it is painful. Radiopacity with radiolucent rim
ऑब्सक्योरिंग रूट। ठीक है, यहाँ पे रेडियो ओपेसिटी दिखाई देती है विद रेडियो ओपेसिटी जो है वो जो रिम है रूट का उसको पूरा कवर कर रही होती है। ठीक है, सीमेंटोब्लास्टोमा के अंदर। तो इस केस में भी हमारे पास जो रेडियो ओपेसिटी थी वो पूरी रूट के सीमेंटम को कवर कर रही थी। ठीक है, उसके अराउंड एक बॉर्डर था छोटा सा। ठीक है, तो दैट यहाँ पे वाइटल था दांत। ठीक है, बट पेनफुल भी था, तो इसलिए वी आर गोइंग देयर विद सीमेंटोब्लास्टोमा।